Good morning, student. Today my topic is the Newton law. Newton law of the motion and their application in sports. There are the three laws in the Newton law. Three law of inertia, law of accelerations, and law of reactions. But today I use the accelerations law first, law of inertia. Sir Isaac Newton was an English scientist. He was born 4th January 1643 in United Kingdom, London, United Kingdom, England. Sir Isaac Newton first presented his three laws of motion in the Principia Mathematica Philosophiae Naturalis in 1686. Newton law, Sir Isaac Newton law. His first law states not that every object will remain rest of in uniform motions in straight line unless completed to change its state by the action of an external force. This is normally taken as the definition of inertia. The law of inertia first. जो वस्तु जिस जगह पे पड़ी है उस जगह पे पड़ी रहेगी. जो वस्तु गतिशील है वो उसी गति अवस्था में चलती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर जो है ना लगाया जाए. आई विल गिव एग्जांपल ऑन टेबल. मैं दूंगा अभी आपको. His first law states that every object will remain a rest of in uniform motions in a straight line unless completed to change its state by the action of an external force. This is normally taken as the definition of inertia. This is normally taken as the definition of inertia. The key point here is that if there is no net force resulting from unbalanced force acting on an object, if all the external forces cancel with each out, then the object will maintain a contact velocity, constant velocity में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए. If that velocity is the zero, then the object remain at the rest. अगर velocity जीरो होगी मतलब उसकी जो गति है, जो उसकी स्पीड है वो जीरो होगी तो वहीं पड़ी रहेगी. और अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगता है, जितनी तेजी से उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतनी ही तेजी से वो वस्तु आगे की ओर बढ़ेगी. और वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, हम उसे रोके ना. अभी मैं आपको इसको जो है कंप्लीट करता हूं इसको. And if an additional external force is applied, the velocity will change become of the force. The amount of the change in the velocity is determined by the Newton law, second law of motions. There are many excellent examples of the Newton laws. Newton's first law involving aerodynamic. The motion of an aeroplane when the
pilot changes the throttle settings of his engine is described by the first law. The motion of a ball falling down through the atmosphere or model rocket being launched up into the atmosphere are both examples of Newton's first law. Are you understand, Arshit? Good. The motion of a kite पतंग जो है, when the wind changes can also be described by the first law. ये जो एग्जाम्पल है काइट का है, प्लेन का है, रॉकेट है, बॉल गिर रही है, ये जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से है। मैं इसके और भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, उससे पहले हम समझते हैं फोर्स। न्यूटन लॉ जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया एक इजी वे में आपको समझाया, इससे पहले हम देखते हैं फोर्स क्या है। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स कौन समझते हैं? फोर्स को हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो बल बोलते हैं, बल। तो फोर्स का है कि किसी भी वस्तु को धक्का देना, थ्रो, धक्का मारना, ओके, एंड किसी भी वस्तु को खींचना अपनी ओर, पुल। पुल किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना या किसी वस्तु को जोर से धक्का मारना, तेजी से धक्का मारना, वो है फोर्स। समझ में आ गया? सिंपली अगर हम समझते हैं, हम लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन को समझने से पहले, फर्स्ट लॉ को अगर हम समझेंगे उससे पहले हम फोर्स को समझेंगे। फोर्स क्या है? किसी भी वस्तु को धक्का मारना या किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, वो फोर्स है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई गलती? ठीक। फोर्स को हम समझ लेते हैं डेफिनेशन में। अ फोर्स इज अ पुल और पुश। पुश धक्का मारना अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम the object interaction with another object. Whenever there an interactions between the two objects, there is a force upon which of the object. समझ में आया? Pull and push. Push धक्का मारना, pull खींचना. This is a force. डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब फोर्सेस भी कई टाइप्स के होते हैं। दे आर द मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस, टू टाइप्स। हम डीपली नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा समझेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। हम इसे इतने आसान शब्दों में समझेंगे कि हमें आगे कोई दिक्कत ही ना हो। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? फ्रिक्शन फोर्सेस। Are you understand? Friction forces. Friction forces समझ रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्सेस क्या है? आपके दिमाग में आ जाएगा नंबर 1 फ्रिक्शन फोर्सेस। टेंशन फोर्सेस, माइंड की टेंशन नहीं, किसी वस्तु पर जो हम खींच रहे हैं, जैसे कि हम कुएं से पानी भरते हैं, तो जब हम उसे खींचते हैं, पुल करते हैं, फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो वहां पर टेंशन भी हो रही है, टेंशन फोर्स भी लग रही है। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है ऊपर। ठीक, नॉर्मल फोर्सेस, दिमाग को खोल के रखो, अपना समझ आ जाएगा। एयर रेजिस्टेंस, भाई हम कुएं से पानी निकाल रहे तभी एयर रेजिस्टेंस लग जाएगी, तभी तो उसमें ग्रेविटी फोर्सेस। ओके, अप्लाइड फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस। ओके, दिस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है एक्शन और डिस्टेंस फोर्सेस। एक्शन एंड डिस्टेंस फोर्सेस में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस,
मैग्नेटिकल फोर्सेस, ये फोर्सेस हैं। किसी भी वस्तु को खींचना अपनी ओर और अपनी ओर से धक्का मारना, वो फोर्सेस है। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि अ फोर्सेस इज अ पुश ऑफ पुल अपॉन एंड द ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फोर्स द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद द अनदर ऑब्जेक्ट when there an interaction between the two objects, there is a force upon each of object. There are the two types: contact forces and action at a distance forces. Complete? फोर्सेस समझ में आ गया आपको? फोर्सेस, इस लॉ को छोड़ दीजिए। अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, आई थिंक सर न्यूटन कौन थे, कब बोर्न हुआ, कहाँ हुआ, कैसे थे, साइंटिस्ट थे कि मैकेनिक थे, व्हाट इज, है ना? तो कई सब मैंने डिस्कस किया, उसके बारे में बताया कि इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया को अभी हम माइंड से अलग करते हैं। हम सबसे पहले एक फोर्स पे जाते हैं, खींचना और धक्का मारना, ठीक? आपका फोर्स है, उसके है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? अगर हम इसको हिंदी में समझते हैं, दोनों तरह की लैंग्वेज थोड़ा पता होनी चाहिए। जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व। जड़त्व मतलब ठोस, कठोर, बिल्कुल ऐसा जो हिलाया ना जा सके, इनर्शिया। थोड़ा सा जड़त्व बोलते हैं तो थोड़ा सा समझ में आता है कि कठोर, भरा हुआ, दबाव, टाइटनेस, जड़त्व। जड़, जड़ के समान जमीन में दबा हुआ, जैसे जड़ होती है उसको हिला सकते हैं, पेड़ को जल्दी से हिला नहीं सकते, वो जमी रहती है। जड़, टाइटनेस, बिल्कुल कठोर, ठीक? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया पहले उससे हम बात करते हैं। इनर्शिया किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण, किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। अभी मैं आपको इंग्लिश में डिस्क्राइब करूंगा इसको। जो किसी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु, ओके, पेन, ये है आपका व्हाइटनर। किसी भी वस्तु का वो प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। इसमें मैं परिवर्तन करूंगा, ये विरोध कर रहा है, ये एक जगह रुका हुआ है, ये हिल नहीं रहा है, कहीं हिल रहा है, अपने आप नहीं हिल रहा है। तो इसकी जो प्राकृतिक अवस्था है, किसी वस्तु की ये प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, वो इनर्शिया है। कैसे? अब ये तो जो है पड़ी हुई वस्तु है, स्थिर अवस्था में है, अभी पड़ी हुई है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अगर हम इसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो यह इनर्शिया कहलाता है। इस इनर्शिया, इसका जो गुण है, इसका गुण क्या है? चलने का गुण थोड़ी है इसका तो बैठे रहने का, लेटे रहने का, पड़े रहने का गुण है। तो इसका जो गुण है, इसमें जो है, इसको हम उठा लेते हैं, इसके अपोजिट हम काम करते हैं, दिस इज इनर्शिया, ठीक है? और अगर हम कोई गेंद को फेंका हमने, वो गेंद जब तक चलती रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, लेकिन जब तक ये चलती रहेगी, अगर हम किसी गेंद को फेंकते हैं, ये तब तक चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स कोई उस पर ना लगे। तो उसकी गतिशील अवस्था में जो परिवर्तन किया, उसको हमने रोक दिया, वो उसका जड़त्व है, उसका इनर्शिया है। समझ में आ रहा है? चलती हुई वस्तु वो है। देखिए दोबारा मैं आपको एक इसकी डेफिनेशन बताता हूं। किसी भी वस्तु या का वो प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम, जो रुकी हुई है अवस्था वो, और गति की अवस्था, जो चलती हुई चीज है, उसकी अवस्था में अगर हम परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन का विरोध करते हैं, जो चलती हुई चीज है, कोई चीज चल रही है, हम उसको रोक रहे हैं, तो उसकी गति की जो गति की अवस्था है, उसमें जो परिवर्तन करते हैं,
कि भाई रुक जा, तू जा मत, तू वहीं रोक देते हैं उसको, वो जड़त्व कहलाता है। ठीक, उसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन को समझ लेते हैं, इंग्लिश में उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू एनी चेंजेस in its velocity. It includes changes to the object speed or direction of the motions. As effect of this property is the tendency of the object to keep moving in a straight line at a constant speed when no force act upon them. समझ रहे हैं? समझ में आ गया ना? उसको दोबारा से मैं आगे पढ़ाता हूं कि इनर्शिया कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड इनर्स एंड मीनिंग आइडियल। स्लेजिस इनर्शिया इज वन ऑफ द प्राइमरी मैग्निफिकेशन ऑफ मास विच इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी इज फिजिकल सिस्टम्स। आइजैक न्यूटन डिफाइन इनर्शिया एज फर्स्ट लॉ इन द फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है, उसमें इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें इन्होंने इसको जो है एक्सप्लेन किया है, लॉ ऑफ न्यूटन के लॉ को, न्यूटन के लॉ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इनर्शिया समझ गए आप लोग? दोबारा से बताना तो नहीं है इसमें कि जो वस्तु पड़ी हुई है, सपोज कि ये वस्तु है, इसकी जो अवस्था है वो पड़े रहने की है, तो इसको अगर हम परिवर्तन करते हैं, इसमें इसकी परिवर्तन, इसकी अवस्था में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो वह जड़त्व कहलाता है, उसको इनर्शिया बोलते हैं। ठीक, अभी बॉटल है, ये खड़ी हुई है, ठीक, इसको हमने उठाया तो इसकी अवस्था में हमने परिवर्तन किया, परिवर्तन का विरोध किया। ये पड़ा हुआ है, सपोज कि तुम बैठे हो, तुम्हें मैं जबरदस्ती उठाऊंगा तो तुम दिस इज इनर्शिया। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जड़त्व जो होता है, जो इनर्शिया होता है, उसको मेजरमेंट कैसे करें। अभी हम लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, उसका मेजरमेंट कैसे करें। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का माप, जो मास है, किसी भी वस्तु का जो मास है, उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी इनर्शिया की मास होता है वो। ठीक है, जो वस्तु है, जो जितनी उसका वेट है, जो उसका वेट है वही उसका जो है इनर्शिया है। जितनी भारी वस्तु होगी उतना ही उसमें वही इनर्शिया रहेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इनर्शिया और फोर्सेस आपने समझ लिया, अब हम लॉ ऑफ इनर्शिया पे आते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? अभी मैंने आपको उससे पहले बताया था कि अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will remain in motion at the same speed and in the same direction unless acted on by an external forces। इनर्शिया आप समझ गए कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक उसी अवस्था में पड़ी रहेगी या उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, वो उसी अवस्था में पड़ी रहेगी। ठीक, बॉटल है, एग्जाम्पल है बॉटल का। ठीक, दिस इज बॉटल, ये ऑब्जेक्ट है, बॉटल है, ये उसी अवस्था में रहेगी, ये तब तक रहेगी उसी अवस्था में जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हमने इसको उठा लिया, इसकी जो स्थिति है, जो इसका जो इनर्शिया है,
उसका जो है अपोजिट हमने उसको जो है उसका विरोध किया है, उसके अगेंस्ट हमने काम किया है, तो ये लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ होगा। ठीक, सपोज कि ये बॉटल तब तक नहीं रखती रहेगी, ये बॉटल है, ये बॉटल को हमने फेंका ही जब तक चलती रहेगी जब तक इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, ये तब तक लुढ़कती रहेगी। ठीक, अब फोर्सेस मैंने आपको बताया, फोर्सेस जो है कौन कौन सा हो सकता है। सपोज कि हमने किसी गेंद को जो है हमने फेंका, गेंद को हमने फेंका, फेंकने के बाद क्या वो गेंद चलती रहेगी, गेंद जब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे ना लगे। क्रिकेट के मैच में अगर हम लोग देखें तो जब हम शॉट मारते हैं तो बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जमीन पर आ जाती है, नहीं तो वो उड़ती रहेगी। इसी प्रकार से फुटबॉल के मैच में अगर हम फुटबॉल पे किक मारते हैं तो फुटबॉल तब तक चलती रहेगी जब तक कोई उसको रोके ना, उसे रोक ले, बॉल को रोक लिया, अपने पैरों से उसको जो है उसकी जो स्थिति है उसको चेंज ना कर दे, उसे रोक ना ले, तो तब तक वो लुढ़कती रहेगी, चलती रहेगी। और अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो जो फ्रिक्शन है, जिसके हमने क्या बोला था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वो उसको जो है होल्ड कर देगा। एयर रेशियो उसको होल्ड कर देगा, एयर चल रही है एयर से होल्ड कर देगा, वही फोर्स है। तो समझ में आ गया आपको लॉ ऑफ इनर्शिया। आई कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एग्जांपल क्या है हमारे, एग्जांपल है ये बॉटल है। सपोज कि हम किसी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, ठीक, हमारी बॉडी का जो मास है, जो हमारी बॉडी का वेट है, जो भार है, जो द्रव्यमान से हम कहते हैं हिंदी में, अगर किसी गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड जितनी तेज होगी बॉडी की स्पीड भी उतनी रहेगी, लेकिन हमारा शरीर जो है वह इनर्शिया की वजह से, ये जो लॉ है उस पर वर्क करता है। कैसे? गाड़ी में ब्रेक मारा, हमारा शरीर आगे तरफ जाएगा, ठीक, इसी प्रकार से जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट करी हम पीछे तरफ चले जाएंगे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया की वजह से, उसके जड़त्व की वजह से, उसके द्रव्यमान की वजह से, उसके मास की वजह से ये होता है। ठीक है, अब एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे कि पेड़ पे लगी पत्तियां, पेड़ पे लगे फल, अगर हम किसी टहनी को ऐसे हिलाते हैं तो हमने जो चीज रुकी हुई है उसकी अवस्था में हमने उसकी जो अवस्था में हमने परिवर्तन किया, हमने जो है उसका विरोध किया, उसके अवस्था के अपोजिट हमने काम किया, उसको हमने हिलाया, तो उसके फल जो है इनर्शिया की वजह से टंगे रहते हैं, पत्तियां हैं, तो पत्तियां जो है जब पेड़ रहेंगे तो फल आगे पीछे नहीं लेंगे, वो अपनी जड़त्व गुण की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो नीचे आ जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, गद्दा ले लीजिए, आपने समझो कि कोई रुई का गद्दा आपने ले लिया, उसे आपने पकड़ा, आपने डंडे से उस पर गद्दे पे मारा, तो आप कहते हैं कि देखो कितनी धूल उड़ रही है। वो धूल उड़ती नहीं है, वो ऐसा होता है कि जब गद्दे पर डंडा मारेंगे तो गद्दा जो है अपनी जगह से हिल जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से उसका जो गुण है, उसका जो कण है, उसका अपना एक, उसके अपने एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करते हैं कि गद्दा हिलता है, वो धूल वहीं रहती है, उसके कण नीचे गिर जाते हैं, वो वहीं रहते हैं, गद्दा हिलता है बस, और वो कण वहीं रहते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। वो जो उसके कण है, धूल के कण, वो हिलते नहीं है, सिर्फ गद्दा हिलता है। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल है। आइए हम मॉडल के थ्रू समझते हैं। ये बॉटल है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका गुण जो है, उसका जो कैरेक्टर है उसका क्या है कि वो अपनी जगह पे रहती है, ठीक, वो नहीं जाएगी। नीचे जो पेपर है, वो पेपर जो है रखा हुआ है, हमने पेपर खींच लिया तो पेपर की साइज नहीं गई है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये उस जगह पे नहीं, इसके अपोजिट हमने काम किया है, लेकिन वो अपना वेट को जो है, वेट की वजह से, अपने प्रॉपर्टी की वजह से वो वहीं की वहीं
रहेगी। ये सब एग्जाम्पल है, बॉटल को हमने ऊपर रखा, हमने पेपर के साथ बॉटल बह गई, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया में एग्जाम्पल आएगा। अब हम आगे चलते हैं। पानी का गिलास हम ले लेते हैं, उसमें कार्ड रखते हैं, कार्ड में कुछ सिक्के रख देंगे, हम कार्ड को मारेंगे, सिक्का जब उसमें गिर जाएगा वो वहीं रुका रहेगा, सिक्का वो कार्ड के साथ नहीं जाएगा। तो ये कुछ इसके जो है एग्जाम्पल है। आई विल यूज सम एग्जाम्पल। आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको जो है 10 एग्जाम्पल्स, आई हैव 10 एग्जाम्पल्स। क्या है एग्जाम्पल लॉ ऑफ मोशन के? एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया इन द अवर डेली लाइफ। You tend to move forward when sudden brake is applied. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, you feel a backward force when the bus move quickly from rest. ठीक है, एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप लोग. Dusting bed with a broom remove dust due to inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो कण हैं वो रेस्ट करते हैं वहां पे, तो उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो जो है उड़ते नहीं हैं, वो वहीं के रहते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं और गद्दा मूव करता है। ठीक, जो बेड है, बेड का जो गद्दा होता है, ठीक है। When you shake a branch, the leaf at distance fruits and leaves. Experientially jerk when lift suddenly start. Athlete track a short run before a jump. लॉन्ग जंप पे देखा आपने, जो हम दौड़ के आते हैं तो थोड़ा रुक के हम लोग जंप करते हैं, ठीक, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया में। क्रिकेटर मूविंग backward before catching a ball. Number 8 example, milk keep swirling even after storing is stopped. Tightening of seat belt in a car when it stops quickly. Number 10, object that stabilize orbit around the earth like satellites continue on their trajectory due to inertia. These are 10 examples. Okay, हर्षित, सागर, और इसमें कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं. There are a great number of examples of the law in the field of sports and games. जैसे मैंने लिखा है, there are the application sports, application or sports, such as the starting in rowing, घूमना, मौत का कुआं जैसे होता है, सॉरी रोविंग, नाव चलाना, नाव को चलाते हैं हम लोग, तो लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा उसमें। नाव तो स्थिर है, उसकी जो है उसका जो स्थिरता का विरोध हमने किया, जो हमने उसको आगे बढ़ाया, लॉ ऑफ इनर्शिया, और वो उसी फोर्स से, जो उसका जो भार है उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ती है, जितना हम उसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक। स्टार्टिंग ऑन रोमन रिंग्स, स्टार्टिंग इन स्प्रिंटिंग, जैसे हम लोग कहीं स्प्रिंट मारते हैं 100 मीटर की, तो रुकते हैं, हम पूरा फोर्स लगाते हैं, हम रुके रहते हैं, और जितने फोर्स के साथ हम दौड़ेंगे उतनी तेज हम स्प्रिंट में निकल जाएंगे, ठीक। स्टार्टिंग इन द थ्रोइंग द हैमर, राइजिंग ऑन अपोनेंट इन रेसलिंग, बेसिकली opponent in the wrestling, etc. Basically is object is the external, object is the in motion, it remain in the motions less something of some external forces stop it. The external forces may be gravitational force, the surface of the playing field, a decisive player of the braking action of the sports person body to stops. देखिए, जब हम रेसलिंग के गेम में करते हैं,
रेसलिंग गेम में हम एक दूसरे को खींचते भी हैं और पुश भी करते हैं। हम उसको जो पहलवान है उसको उठाकर ऐसे ऊपर उठाते हैं, तो जो उसका जो है उसको जितना भारी व्यक्ति है उसको हम उठाते हैं, उसको हम जो फोर्स लगाकर उसको हम मूवमेंट देते हैं, वही लॉ ऑफ इनर्शिया है। कई गेम्स में इस चीज का इस लॉ का हम यूज करते हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कंप्लीट है। आई विल गिव द रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको जो है एक दो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बता देता हूं। related MCQ related some questions for my topic law of inertia. These are objective type questions. Number one, if a train is the retarding and at the some time a coin is the throw upward, then you will observe that. Number one, the coin reaches again in your hand, a coin fall behind you, the coin fall in the front of you, the coin follow a circular path. These are question, MC question related to the law of inertia. And number two questions. Which law of Newton define the inertia frame of reference? Okay. Number one, first law of motion. Number two, second law of motion. Number three, third law of motion. Number four, law of gravitational. Okay. Now, I will give the assignment in your homework portal. And number three, question: when your car take a sudden turn, you are thrown towards the outer side. Which law explains this process? Number one, Newton third law, Newton second law, Newton first law, law of gravitational. Number four questions. The law that give a qualitative definitions of force is: number one, A, Newton second law of motions. Number two, law of inertia, Newton third law of motion, and law of gravitational. Next question, MCQ related. The inertia of an object tend to cause an object. Number one, to increase its speed, to decrease its speed, to resist any change in its motions, to declarative due to frictions. Number six question. The passengers are thrown outward when a bus suddenly takes a turn. This happens because of: number one, inertia of motions, acceleration of motions, speed of motions, both B and C. Okay, so this is a question related of the law of inertia. The first law of the motions. One question is very important. The path of projectile is called curve, time of action, orbit, and trajectory. So thank you very much, friends. Today my topic is complete: inertia, law of inertia, and best of luck and thank you.